اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میں ایک فقیرنی تھی، منہ چھپا کر سڑک کنارے بھیک مانگتی تو دن بھر کے اچھے پیسے کما لیتی۔ ایک دن اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عورت بازار سے باہر نکلی تو درد سے تڑپنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تو وہ میرے کان میں بولی، پلیز میری مدد کرو، میری ڈلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ کر اپنی جھونپڑی میں لے آئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس عورت نے جو ہی بچہ جنم دیا تو میں اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی سے اپنی چادر میں چھپا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ کر میں نے جب چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو آنکھیں پتھرا گئی، کیونکہ میری گود میں تو عجیب و غریب۔ میرا نام نورا ہے، پیشے کے لحاظ سے میں ایک فقیرنی ہوں۔ دن بھر بھیک مانگتی تھی تو اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، لیکن ہم فقیروں میں پیسے کی ہوس اس قدر ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی مل جائے کم ہی لگتا ہے۔ میں اور میرے 4 بچے دن بھر کے تھکے ہارے گھر لوٹے تو بستر پر اوندھے منہ لیٹے شوہر کو دیکھ کر میرا پارا چڑھ جاتا تھا۔ میں اپنی جھونپڑی میں آتے ہی برتن اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگ جاتی اور اپنے شوہر سے لڑتی کہ تو کیوں دن بھر یوں پڑا رہتا ہے، تو بھی کچھ کما کر لایا کر، تو دیکھ کس طرح تیرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی محنت کرتے ہیں، مگر تیرے منہ کو تو مفتا لگا ہے۔ میرا شوہر بیزارے سے مجھے گھور کر جھونپڑی سے نکل جاتا تھا۔ پھر میں اور میرے 4 بچے زمین پر بیٹھ کر مانگ کر لایا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ ہمارا کھانا سفید پوش لوگوں سے بہتر ہی ہوتا تھا، ان کو تو دال روٹی ہی نصیب ہوتی تھی، جبکہ اللہ ہم پر اس قدر مہربان تھا کہ ہر روز زبان کو نیا ذائقہ چکھنے کو ملتا تھا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی جب ایک بہت ہی پراسرار سے واقعہ میری زندگی میں رونما ہوا تھا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق منہ چھپا کر بھیک مانگ رہی تھی جب میری نظر بازار سے نکلی ہوئی عورت پر پڑی تھی۔ وہ عورت درد سے تڑپنے لگی تھی۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تو وہ میرے کان میں بولی، پلیز میری مدد کرو، میری ڈلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ کر اپنی جھونپڑی میں لے آئی تھی، جو شہر کے بیچوں بیچ ہی تھی، جہاں میں اپنے بچوں سے مل کر ان سے ان کے آدھے دن کی کمائی لے کر انہیں پھر سے بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس عورت نے بچے کو جنم دے دیا تو میں لالچ میں آ گئی تھی۔ میں نے اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی سے اپنی چادر میں چھپا لیا اور وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ عورت مجھے زندگی میں دوبارہ کبھی ملے گی بھی یا نہیں، لیکن پھر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ میری ساری زندگی یکسر بدل کر ہی رہ گئی تھی۔ اس دن میں اپنے بچوں کو بازار میں ہی چھوڑ کر بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ گئی تھی۔ اپنی جھونپڑی میں آ کر میں نے جب چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو آنکھیں پتھرا گئی تھی، کیونکہ میری گود میں تو عجیب و غریب بچہ پڑا رو رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھ کر خوف سے چیخ مار دی تھی۔ میرا شوہر موجو بھاگ کر میرے پاس آیا اور بولا، کیا ہوا ہے؟ مگر جب اس نے میری گود میں پڑے بچے کو دیکھا تو وہ بولا، ارے کم بخت، یہ تو کیا اٹھا کر لے آئی ہے؟ میں خود حیرت زدہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس بچے کو چادر میں چھپا کر جھونپڑیوں کے پیچھے کی جانب بنے کوڑے کے ڈھیر پر اس عجیب و غریب بچے کو پھینک آئی تھی۔ موجو میری ساری کاروائی دیکھ کر خاموش ہی رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو بازار سے بچے لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ موجو کے جانے کے بعد میں نے جھونپڑی میں جھاڑو لگایا اور ادھر ادھر کے کام کر کے اپنے ذہن سے اس بچے کے خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شام میں ہم سب نے بچوں کا لایا ہوا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آج کتے بہت زور و شور سے بھونک رہے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے میں کانپ اٹھتی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ اب کچھ دیر میں یہ کتے بچے کو چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ میں بڑی مضطرب سی لیٹی ہوئی تھی جب میرا شوہر بولا، نورا، ہم فقیر لوگ ہیں، لوگوں کو دعا دے کر پیسے لیتے ہیں، ہم کب سے اتنے ظالم ہو گئے کہ لوگوں سے ان کے بچے چھین کر کتوں کے سامنے ڈال دیں۔ موجو کی بات سن کر میں کانپ اٹھی تھی۔ میں جلدی سے چٹائی سے اٹھی اور بڑا سا ڈنڈا اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ موجو بھی میرے پیچھے ہی آیا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی کتوں کو بھگانے کے لیے موٹا سا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ ہم جلدی سے جھونپڑیوں کے پیچھے بھاگے تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو اٹھا لیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ بچہ بالکل محفوظ رہا تھا، اسے خروچ تک نہیں آئی تھی۔ میں اس بچے کو جھونپڑی میں لے آئی تھی۔ میں نے اسے نہلایا دھلایا، اسے موٹے سے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لٹا لیا تھا۔ وہ بھوک کی شدت سے رونے لگا تھا تو میں اس کی رضائی ماں بن گئی تھی۔ وہ بچہ کمزور سا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بہت واضح خم تھا، یعنی کہ وہ بچہ پیدائشی کبڑا تھا۔
उसका छोटा सा सर था, अंदर को धसी हुई आंखें और बड़ा सा नाक था। मौजू बच्चे को देखकर हंस पड़ा और बोला, नूरा, तूने पूरी दुनिया से यही बच्चा चुराना था क्या? मैं खामोश ही रही थी। सुबह हुई तो मैंने आस पास की झोंपड़ियों में ऐलान कर दिया था कि मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। हमारे यहाँ बच्चा होना कोई अनोखी बात नहीं समझी जाती थी, क्योंकि हर झोंपड़ी में आए दिन कोई ना कोई बच्चा जरूर जन्म ले रहा होता था। एक हफ्ता मैंने उस नन्हे बच्चे की खूब देखभाल की। फिर जब वो जरा बेहतर हुआ तो मैं उसे अपने साथ ले जाकर भीख मांगने लगी थी। मगर ये देखकर तो मेरी तो हैरत की इंतहा ही ना रही थी कि लोग इस कुबड़े बच्चे को मेरी गोद में देखकर मुझे दुगनी खैरात देकर जाते थे। ये दौर ऐसा है कि इसमें डर बिकता है। लोग इस अजीबो गरीब बच्चे को देखकर डर जाते थे और अपने बच्चों का सदका हमें थमा जाते थे। 2 दिन में ही मेरी कमाई मेरे 4 बच्चों की निस्बत ज्यादा हो गई थी। मैंने इस बच्चे का नाम लकी रख दिया था। लकी लफ्ज हम फकीरों में बड़ा आम था। हम हर वक्त आवर चीज को लकी कहते थे। मेरा शोहर भी मेरी दुगनी कमाई से बड़ा खुश था, मगर मुझे अंदर ही अंदर एक बेसुकूनी ने अपने हसार में लिया हुआ था। मुझे यही डर था कि कहीं इस बच्चे की असली माँ मुझे देख ना ले। मुझसे वो अपना बच्चा तो छीन ही लेती और मुझे जेल भी करवा देती, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि कुदरत ने इस बच्चे के लिए कुछ और ही सोच रखा था। हुआ यूं कि मैंने मौजू से कहकर शहर बदल लिया। वो मेरी बात मानने के हक में नहीं था, मगर फिर मेरे इसरार के आगे उसने हथियार डाल दिए थे। हमने उस शहर के पास ही हिजरत कर ली थी। हमने दूसरी जगह फकीरों की झोंपड़ी के पास अपनी झोंपड़ी लगा ली थी। हम लोग सादा से होते हैं, जल्द ही नए लोगों में घुल मिल जाते हैं। मेरे बच्चे भी वहाँ के बच्चों के साथ घुल मिल गए थे। वहाँ की औरतें लकी को देखकर बड़ी हकारत अमीज बातें करती थी, तो मेरा बड़ा दिल दुखता था। फकत एक ऐसी फकीरनी थी जो मेरे लकी के मुतालिक कोई बेहुदा बात नहीं करती थी। वो कौसर नामी फकीरनी अपनी माँ के साथ अपनी झोंपड़ी में रहती थी। कौसर मेरे पास आकर बैठ जाती और बड़ी अजीबो गरीब नजरों से लकी को देखती रहती थी। वो मुझसे लकी के मुतालिक ढेरों सवालात पूछती तो मैं चौंक उठती थी। मुझको कौसर पर शक हो गया था। वो लकी को बड़ी ललचाई हुई नजरों से देखती थी। शायद मेरी दुगनी आमदनी देखकर उसकी राल टपकने लगी थी। मैंने मौजू से अपने डर का इजहार किया तो वो बड़ी देर हंसता रहा। वो बोला, तू तो लकी को ऐसे छुपा छुपा कर फिरती है जैसे ये सोने की कान हो। मैं अब कौसर से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैंने इसको एक दिन बताया कि कौसर, मेरा लकी मुझसे बहुत ज्यादा करीब है। ये तो मेरे अलावा किसी के हाथ से कुछ खाता भी नहीं है। अगर कोई इसे मुझसे छीन कर ले गया तो ये मर जाएगा। कौसर एकदम से कांप उठी थी। मुझे उससे बड़ा खतरा महसूस होता था। मुझे लगता था कि वो मुझसे मेरा लकी छीन कर ले जाएगी। इसीलिए मैं उसको ऐसी बातें करती रहती थी कि लकी मेरे बगैर नहीं रह पाएगा। एक शाम अचानक ही लकी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसे शदीद बुखार ने आन लिया था। मौजू तो भीख मांगने गया हुआ था। मैं बहुत परेशानी की हालत में घिरी हुई थी। तब कौसर लकी के रोने की आवाज सुनकर मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या हुआ इस बच्चे को। मैंने जब लकी की बीमारी का बताया तो वो बहुत परेशान हो गई थी। वो बोली, मैं अभी इसके लिए दवा लेकर आती हूँ। और मेडिकल स्टोर से सिरप ले आई। मैंने वो सिरप लकी को दिया तो वो सो गया था। कौसर मेरे पास ही जमीन पर बैठ गई थी और बोली, औलाद इंसान को कितनी प्यारी होती है ना। मैं बोली, हाँ होती तो है, मगर तुम्हें कैसे पता, तुम तो कंवारी हो अभी। तो वो बोली, नहीं कंवारी नहीं हूँ, मैंने पैसे की खातिर अपनी कोख बेचने के लिए शादी की थी। बच्चा जनकर मुझे पैसे तो मिल गए, मगर मेरा बच्चा मेरे पास रहा नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे लकी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हैरत से कौसर की जानिब तकती रही थी। मैं बोली, ये क्या बात हुई, तुम मुझे खुलकर बताओ सारी बात। वो बोली, फिर कभी बताऊंगी। इतना कहकर वो रोती हुई मेरी झोंपड़ी से निकल गई थी। मैंने लकी को देखा तो वो अब काफी बेहतर महसूस कर रहा था। अब मुझे कौसर पर शक नहीं रहा था। मैं समझ गई थी कि वो लकी से वैसे ही मोहब्बत करती है। फिर सुबह मैंने भीख मांगने जाना था, जबकि कौसर घर पर ही मौजूद थी। मैंने लकी उसके हवाले करके कहा कि आज के दिन इसको संभाल लो, मैं शाम में जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। कौसर ने बड़ी खुशी खुशी लकी को थाम लिया था। मैं बेफिक्र होकर भीख मांगती रही, मगर शाम में मेरा दिल अजीब अजीब वसवसों में घिर गया था। मैं फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी झोंपड़ी की तरफ भागी थी। झोंपड़ी में जाकर मैंने देखा वहाँ पर ना तो कौसर थी और ना ही
खिलाड़ी लकी था। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब किस तरफ जाऊं और कहां से जाकर उस लड़की को ढूंढूं। मैं यूं ही झोंपड़ियों के इर्द गिर्द टहलती रही, लेकिन ज्यादा वक्त हो गया तो मैंने रोना शुरू कर दिया था। मैंने खुद को कोसने देने शुरू कर दिए कि मैंने क्यों उस लड़की पर भरोसा किया जो अव्वल दिन से ही मेरे बेटे को बड़ी ललचाई हुई नजरों से देखती थी। मैं बड़ी खौफजदा सी यहाँ वहाँ आ जा रही थी, तभी मुझे लक्की के रोने की आवाज आने लगी। मैंने आवाज की सिमत दौड़ लगा दी। कौसर लक्की को गोद में उठाए हुए वापस आ रही थी। वो बोली, ये लो बहन, तुम्हारा बेटा बहुत ही तंग करता है। इसको तो अपनी माँ के साथ जगह जगह घूमने फिरने की आदत हो गई है। ये तो आज सारा दिन झुग्गी में पड़ा रोता ही रहा। अब मैं तुम्हारी तलाश में ही निकली थी, शुक्र है तुम वापिस आ गई हो। मैंने जल्दी से लक्की को थाम कर उसे चूमना शुरू कर दिया था। मैं लक्की को चूमती जाती और रोती जाती थी। कौसर खामोश से अपनी झोंपड़ी में चली गई थी। मुझे याद आया कि मैंने तो कौसर का शुक्रिया अदा ही नहीं किया। मैं जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गई, मुझे सिसकने की आवाज आने लगी थी। मैंने जल्दी से झोंपड़ी का पर्दा हटाया और उसमें दाखिल हो गई। मैंने कौसर से कहा कि आज तो तुम मुझे अपनी दास्तान सुना ही दो कि आखिर तुम्हारे बच्चे के साथ हुआ क्या था। कौसर बोली, हम भी भिखारी हैं, भीख मांग कर 2 वक्त की रोटी तो खा सकते हैं, मगर किसी दर्द बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते। यूँ हुआ कि मेरे बाप को कैंसर हो गया था। हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। भीख के पैसों से तो अब्बू का इलाज नामुमकिन था। फिर एक दिन अम्मा ना जाने कहां से आई थी। वो बहुत खुश थी। वो मुझसे लिपट कर बोली, कौसर, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। तुम्हारे बाप के इलाज के लिए अल्लाह ने तुम्हें वसीला बना लिया है। मैं हैरत ज़दा सी अम्मी को देखती रह गई। मैंने पूछा, आप क्या कह रही हैं? अम्मी बोली, आज मैं जब एक दूर दराज कोठी में खैरात मांगने गई कि बड़ी बीबी ने मुझसे कहा कि उन्हें अपने शोहर की दूसरी शादी करवाने के लिए एक लड़की चाहिए। वो ऐसी लड़की चाहती हैं जो उन्हें पैसों की खातिर बच्चा पैदा करके दे, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद उसके शोहर से तलाक लेकर चली जाए। इस काम के लिए वो कोठी की मालकन बहुत बड़ी रकम देने को तैयार थी। अम्मी ने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर इस बड़ी मालकन के सुपुर्द कर दिया। मैं शादी करके हवेली चली गई थी। मालकन बहुत खूबसूरत सी औरत थी, मगर वो बहुत करख्त। वो मुझसे बड़ी तलखी से पेश आती थी। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने शोहर का बच्चा पैदा करने के लिए लाई हूँ, मगर तुम जैसे ही वो बच्चा जन्म दोगी तो अपने पैसे लेकर यहाँ से चली जाना। उसके बाद कभी मुड़कर भी बच्चे का नाम मत लेना। मैं खुद कम उम्र लड़की थी, मुझे बच्चे की क्या जरूरत थी। मैंने तो सिर्फ अपने अब्बू के इलाज की खातिर ही इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मेरा निकाह मालिक से हो गया था। वो एक बहुत ही रहमदिल और अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर ये हकीकत खुल गई थी कि मालिक अपनी जोजा के साथ सिर्फ मुरव्वतन ही रह रहे थे। वो अपनी बीवी की हरकत से बहुत तंग थे। मालकन मालिक के सामने तो मुझसे बहुत अच्छी रहती थी, मगर जैसे ही मालिक घर से बाहर जाते वो मुझ पर हुक्म चलाने लग जाती थी। मुझसे घर के काम करवाती, अपने जूते साफ करवाती। एक दिन मालकन मुझसे अपने जूते साफ करवाते हुए बोली, तुम्हारी हैसियत मेरे इन जूतों में है, इनसे आगे बढ़ने का कभी सोचना भी मत। मैं कहाँ सोच रही थी कुछ और, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद के इलाज की पड़ी थी। एक दिन मैंने मालिक को हामला होने की खुशखबरी सुनाई तो वो खुशी से फूले ना समाते थे। उन्होंने दुनिया की हर नेमत मेरे कदमों में लाकर ढेर कर दी थी। मुझे अपने घर की महारानी बनाकर रखा हुआ था। मुझे बेड से कदम उतारने की भी इजाजत नहीं थी। मालिक ऑफिस से भी बार बार फोन करके मुलाजमों को हदायत देते रहते थे। इस सारी सूरत हाल से मालकन बहुत चिढ़ गई थी। उनको लगता था कि अब बस उनका शोहर उनसे छीन जाएगा। वो तो मेरे हामला होने की खबर सुनकर दीवानी ही हो गई थी। जब मेरा 7वां माह हुआ तो वो मुझसे घर में पोंछा लगाने को कहती तो कभी बार बार सीढ़ियों के चक्कर लगवाती। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैं सहन में पोंछा लगा रही थी। मुझे भूख भी बहुत लगी थी, मगर मालकन का हुक्म था कि खाना तब ही मिलेगा जब तुम अपना काम मुकम्मल कर लोगी। मैं एकदम से चकराकर नीचे गिर पड़ी थी। मुझे नहीं मालूम फिर क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी। मेरे पास ही परेशान से मालिक बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, कौसर, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? उनकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोती थी। मैंने उनसे कहा कि मालिक, मैं तो आपके घर में एक मुलाजमा की हैसियत से आई हूँ ना। मैंने तो हर हुक्म मालकन का ही मानना है। मालकन मुझसे काम करवाती है, मुझे खाने को नहीं देती और उन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं जैसे ही बच्चे को जन्म दे दूं मैं आपके घर से अपनी शक्ल गुम कर लूं।
क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी वालदा से खरीदा हुआ है। पता नहीं मैंने क्यों जज्बात की रो में बहकर सब कुछ मालिक को बता दिया था। मालिक की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो हैरत ज़दा से थे। उन्होंने कहा, कौसर अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर उसके बाद वो उठकर मेरे पास से चले गए थे। अगले दिन जब मैं डिस्चार्ज होकर घर गई तो मुझे मुलाजमों के मुंह से पता चला था कि मालिक ने घर आकर मालकन की बहुत बेइज्जती की थी। उन्होंने एक एक मुलाजिम से पूछा था कि मालकन ने कौसर के साथ क्या सलूक किया है। हम सब ने सच बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने मालकन को अपने कमरे से निकाल दिया और आपकी चीजें अपने बेडरूम में सेट कर ली हैं। उन्होंने कहा कि मालकन इनको अपनी शक्ल ना दिखाए, नहीं तो गुस्से में आकर कुछ भी गलत कर जाएंगे। मैं मालकन के गुस्से से शदीद डर गई थी। मैंने तो ये सब कभी भी नहीं सोचा था कि ये कुछ हो जाएगा। मैं बहुत खौफजदा सी थी कि ना जाने आगे क्या होगा, मालकन मेरे साथ क्या सलूक करेगी। मुझे यकीन था कि मालकन मुझसे इस बात का बदला जरूर लेगी। वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मालिक अपने बिजनेस के सिलसिले में बैरूने मुल्क गए, मालकन मेरे साथ पर आंधी तूफान की तरह आकर खड़ी हो गई थी। वो मुझ पर चीख चिल्ला रही थी। उन्होंने मेरी औकात याद दिलाने में 1 मिनट नहीं लगाया था। वो बोली, भिखारन है ना तू, मैंने तो तुम्हें अपने घर में जगह दी, इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरे साथ ये क्या किया। सच कहते हैं कि कम नस्ल लोग अपनी नस्ल दिखा कर ही रहते हैं। उसके बाद वो बोली, मुझे ना तो तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी कोख में पलने वाले औलाद की। तुम अपना बच्चा समेत फौरन दफा हो जाओ। मैं हैरत ज़दा सी थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं घर से निकलती हुई सड़कों पर 2 दिन तक दर बदर फिरती रही थी। भूख की शिद्दत और थकन की शिद्दत से मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी और अचानक मेरी तबीयत इस कदर खराब हो गई थी कि मुझे मालूम हो गया था कि मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैंने भरे बाजार में एक औरत से मदद मांगी थी। वो मुझे लेकर अपनी झोंपड़ी में चली गई थी। उसने मेरी मदद की। जब मैंने बच्चे को जन्म दे दिया तो उस औरत ने मुझे वहीं पर छोड़ दिया और खुद बच्चा लेकर भाग गई। मैं कौसर की बात सुनकर सख्ते में आ गई थी। मैं बोली, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कौसर रोते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम वही औरत हो जो मेरे बच्चे को लेकर भाग गई थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। यूं ही मैं गिरती पड़ती जब अपनी झोंपड़ी में आई तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि मालकन ने अभी तक उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया था। इलाज ना होने की वजह से मेरा बाप भी इस दुनिया से चला गया था। अब मैं और मेरी माँ ही रह गए थे। मैंने पैदाइश के दौरान अपने बच्चे को देख लिया था। मुझे मालूम हो चुका था कि वो नॉर्मल बच्चा नहीं था। मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र थी कि न जाने उसका कोई ख्याल रखता भी होगा या नहीं। मैं बहुत बेबस थी। मैं और मेरी माँ अकेली थी। हमारा दुनिया में कोई नहीं था। तो फिर मेरे लिए मेरे बच्चे को कौन ढूंढता? मैंने अल्लाह से आस लगा ली थी और देखो उसने किस तरह से मेरा साथ दिया। उसने मेरी झोंपड़ी के पास मेरा बच्चा लाकर आबाद कर दिया था। तुम मेरी शक्ल भूल गई थी नूरा, मगर मैं तुम्हारी शक्ल नहीं भूली थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं तुमसे अपना बच्चा छीन कर भाग जाऊंगी, मगर जब तुमने बताया कि ये बच्चा तुम्हारे अलावा किसी के हाथ से कुछ खाता पीता नहीं है तो मैंने अपना इरादा बदल लिया था। मुझे अपने बच्चे की जिंदगी ज्यादा अजीज थी। आज जब तुम उसे मेरे पास छोड़कर गई थी तो मैं उसे उसके बाप के घर लेकर गई थी। मैंने सोचा मालिक अपने बच्चे को देखकर नरम पड़ जाएगा, वो उसके इलाज के लिए मुझे कुछ रकम दे देगा, मगर आज फिर मुझे मालकन ही मिली थी। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकलवा दिया था। मैं कौसर की बातें सुनकर दंग रह गई थी। उस बेचारी ने छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं सहा था। मैं उससे बोली, तू फिक्र ना कर, अब तेरा मुकदमा मैं लड़ूंगी। वो हंस पड़ी थी तो लगता था जैसे वो रो रही हो। मैंने उसके मालिक का नाम पूछा तो उसने सेठ अहमद फयाज बताया था। मैं जानती थी कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने सेठ अहमद फयाज के ऑफिस की तलाश शुरू कर दी थी। मुझे ऑफिस ढूंढने में इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ी थी जितनी ऑफिस में दाखिल होने के लिए करनी पड़ी थी। मुझे भिखारन को कोई ऑफिस में घुसने ही नहीं देता था। फिर मैं एक दिन सुबह सवेरे ही उस ऑफिस के बाहर जाकर खड़ी हो गई थी। मुझे मालूम था कि जो भी सबसे बड़ी गाड़ी में ऑफिस आएगा वही सेठ होगा। मेरा ये तुक्का चल गया था। अब मुझे वही करना था जो मैं सोचे बैठी थी। जैसे ही सेठ अपनी गाड़ी से निकला मैं चिल्लाई, सेठ जी मैं आपकी बीवी कौसर का पता जानती हूँ। सेठ के चलते हुए कदम रुक गए थे। वो अपने मुहावजों के पहरे से निकलकर मुझ तक आया और मुझसे बोला, तुम क्या जानती हो कौसर के मुतल्लिक? मैंने उनसे कहा कि ये सब आप उसके मुंह से ही सुनिएगा। आप मेरे साथ चलें। सेठ बिना सोचे समझे ही मेरे साथ चल पड़ा था।
اس کی گاڑی جب جھونپڑیوں کے باہر رکی تو کوثر بھی باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ اپنے مالک کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کی جانب بھاگی تھی۔ سیٹھ بھی جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ کوثر بڑی دیر روتی رہی تھی۔ سیٹھ بولا، کوثر تم مجھے چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ کیوں بھاگ گئی تھی؟ تمہیں طلاق چاہیے تھی تو مجھے بتاتی نا۔ تب کوثر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ پھر اس نے روتے روتے ساری روداد سنا دی تھی۔ سیٹھ نے اپنے عجیب و غریب بیٹے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شفقت ہی شفقت بکھر گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو چوم چوم کر روتا رہا تھا۔ پھر سیٹھ کوثر اور لکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں تنہا رہ گئی تھی۔ میں اپنے لکی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میرا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگتا تھا۔ یوں ہی روتے دھوتے ایک ہفتہ گزر چکا تھا جب سیٹھ اور کوثر ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر مجھ تک آئے تھے۔ کوثر نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی امی کو لینے آئی ہے۔ پھر کوثر نے بتایا کہ مالک نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ پھر مالک میرے پاس آیا اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کے بچے کا خیال بھی رکھا اور اس کی بیوی بھی اس سے ملا دی تھی۔ پھر اس نے نوٹوں کا بھرا ایک بکسا مجھے تھما کر بولا کہ یہ ایک ادنا سا تحفہ قبول کر لے۔ میں تو اس بکسے کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میرا لکی واقعی میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا تھا۔ میں نے بھیک مانگنا چھوڑ دی ہے۔ میں نے ان پیسوں سے ایک گھر خریدا ہے اور اپنے شوہر کو کاروبار سیٹ کر کے دیا ہے۔ سیٹھ نے مجھے اتنی رقم دی تھی کہ میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو کم نہ پڑتی۔ اب میں لکی سے اکثر ملنے چلی جاتی ہوں اور مجھ سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے۔